Good morning, students. Today we are going to start reproductive health, chapter number 4, and here we have to study about the awareness of the reproductive health as well as the reproductive health, their problems and strategies, and the population exploration and the birth control, and the methods of contraception that we have to learn here. Okay, so now first we are starting about the reproductive health. Okay, so according to the World Health Organization, what is the definition of reproductive health? Reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. Means when all well-being conditions are there in terms of physical, emotional, behavioral and social, that health is known as the reproductive health. And then we are coming about the reproductive health, their problems and strategies, and India was amongst the first countries in the world to initiate action plan and programs at a national level to attain the total reproductive health, and the program is called the family planning. Or initiated, what is the year here? 1951, and periodically assessed over the past decades. Under a program, the program is known as about the RCH. What is the meaning of RCH? Reproductive and Child Health Care. Reproductive and Child Health Care. That is called RCH program. Creating the awareness among the people about various reproduction related aspects. Okay. Next, what are actually the awareness of the reproductive health? What are the steps the government has to take so that the reproductive health will be maintained properly and the problems will be eradicated? Okay, what are the actually awareness here? With the help of audio visual and print media, है ना, दोनों यहाँ पे audio visual भी use कर सकते हो, print media भी use कर सकते हो. Governmental as well as non-governmental agencies have taken various steps to create the awareness. These all are actually awareness we discuss now, and I will give you the notes where actually I have written in points here, so you can get the points here. All the points are written point wise, so we can read properly also. Here reproductive health, and here also all these things are written in point wise. Okay, so I am just explaining it from your book, so what is given in the book also you can understand. So now it is coming the print media, so awareness creating among the people about the reproduction related aspects. Parents, other close relatives, teachers, friends also have a major role in the dissemination of the above information. मतलब about the reproduction related जो myths होता है या information होता है उसको spread out करना, उसको awareness को increase करना, that is the role of all parents also, relatives also, teachers also, friends also, as well as the audio visual and the print media. दोनों media governmental, non-governmental agencies all are working under this RCH, reproductive and child health care. Okay, so introduction of sex education. ये next point आ जाएगा, introduction of sex education in schools, and that provide the right information to the young as to discourage children from believing in myths and having misconception about the sex related aspects. ये तो हो गया थर्ड नंबर. फोर्थ नंबर में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, STDs, बहुत important लाइन है, AIDS, etc. would help people, especially those in the adolescent age group, lead a reproductively healthy life. Educating people, next point आ जाएगा, educating people especially the fertile couples and those in marriageable age group, है ना, about available birth control options, इसके बारे में उसको information देना. केयर ऑफ द प्रेग्नेंट मदर्स को कैसे केयर किया जाता है. पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मतलब आफ्टर बर्थ, है ना, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, द केयर ऑफ मदर एंड द चाइल्ड. Importance of the breastfeeding, equal opportunities for the male and female child, and etc. would address the importance of
bringing up a socially conscious healthy family. तो these are the actually awareness and problems due to uncontrolled population growth. अगर ये awareness of the problems कौन सा है ना, uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex related crimes need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up the socially responsible and healthy society. So these are the awareness you can create by giving the proper information about reproductive organs, by introducing the sex education in the schools, and as well as that they can discourage the children from believing in myths and the wrong information, misconception about the sex related aspects. And the media is also, print media, all audio visual media, there are also a government and non-government agency, all are actually create the awareness among the people about the reproduction related aspects. So these are actually we can say the awareness, or we can say the awareness of the reproductive health, you can say. Now the one or we have is a successful implementation of the various action plan. ये तो है ही है, अवेयरनेस क्रिएट करना, एजुकेशन को इनरीच करना, अदरवाइज मतलब सबकी प्रॉपर नॉलेज देना, ये सब चीज़ें तो है ही, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में नॉलेज लेना, तो ये सब है ही। साथ ही साथ कुछ एक्शन प्लान को भी इम्प्लीमेंट करना है ना, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, material support, these are essential to provide the medical assistance and care for the people in reproduction related problems like pregnancy हो, delivery हो, STDs, sexually transmitted diseases, abortions हो, contraceptions हो, menstrual problem हो, infertility हो, मैंने इतने सारे जितने सेक्स रिलेटेड और रिप्रोडक्शन रिलेटेड जितने सारी प्रॉब्लम हैं उसमें सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान एज वेल एज द मटेरियल सपोर्ट एज वेल एज द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, ये सब भी रिक्वायरमेंट होता है। इसको अगर आप रिक्वायरमेंट अगर रिक्वायर्स जो चीज़ें हैं ये सब रिक्वायरमेंट है, अगर इसको आप प्रोवाइड कर सकोगे तो डेफिनेटली ये जितने प्रॉब्लम है दैट कैन बी सॉल्व। अच्छा, नेक्स्ट वन मोर टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, देखो कि एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? दैट इज द डिटर्मिनेशन, मतलब फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन इसको बोलते हैं, अदरवाइज वी कैन से द एमनियोसेंटेसिस एक्चुअली होता क्या है, दैट इज अ क्रोमोजोमल, वी कैन से द क्रोमोजोमल डिटर्मिनेशन, वी कैन से, है ना। एमनियोसेंटेसिस द फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo। embryo के चारों तरफ जो amniotic fluid होता है उसी की जो क्रोमोसोमल पैटर्न को टेस्ट करके हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज एक्चुअली वी कैन से एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, है ना। फाइनली यू कैन से प्रीनेटल मतलब आप बिफोर चाइल्ड बर्थ जो डायग्नोस्टिक टेक्निक होता है जिसके थ्रू आप फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन को भी टेस्ट कर सकते हो, लेकिन दैट इज नॉट अ प्रोसेस, दैट इज नॉट अ प्रोसेस और दैट इज नॉट द प्रोसेस यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। एक्चुअली दिस प्रोसेस इज यूज टू व्हिच वन, कि अगर किसी का मान लो कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है, बेबीज एम्ब्रायो जो है, बेनिफिट्स ऑफ एमनियोसेंटेसिस क्या होता है ना, डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल, I think it is not given here, diagnosis of which one chromosomal कोई abnormalities हो, that already I gave you in the note, I think here it is given, I think so, diagnostic this I already gave you, it helps in the diagnosis of the chromosomal abnormalities and development of the disorder। अगर कोई development disorder हो, कोई chromosomal abnormalities हो, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोम जैसे टर्नर सिंड्रोम, अगर कोई ऐसे एबनॉर्मलिटीज हो इन एम्ब्रायो कंडीशन में, दैट कैन बी डायग्नोस्ड बाय दिस प्रोसेस, कौन सा, एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस के थ्रू। बट अगर इट इज नाउ मिस यूज फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके थ्रू सेक्स डिटरमाइन भी होता है, तो इस बट इट इज नाउ मिस यूज फॉर दैट। सो दैट्स वाई स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस
फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन कीप्स चेक ऑन फीमेल फिटिसाइड, इसीलिए फीमेल फिटिसाइड होता है, जब से सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है तो फीमेल फिटिसाइड हो जाएगा, इसीलिए इसके ऊपर एक बैन आ गया, जिसको हम लोग स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। एक्चुअली इट इज यूज्ड फॉर द determination or diagnosis of the chromosomal abnormalities, but it is now misused for which one? Sex determination. That's why it is banned now. So this is amniocentesis, and next one we are coming for the population explosion. Population explosion किसको बोलते हैं ना, is increase, you can say the population explosion किसको बोलते हैं ना, the tremendous increase in the size and we can say the population size of the population, tremendous increase in the size of the population, as well as the we can say the rate of the growth or rate of the population is called the population explosion. I think it is given, है ना, तो these are the actually data are given. The very 6% of the world is in India ना, rapid decline in, अच्छा इसका reason क्या क्या हो सकता है, rapid decline in death rate, maternity mortality rate MMR, infant mortality rate IMR, as well as an increase in number of people in reproducible age, probable reason for this, है ना। ये 4 पॉइंट आपके पास है, जो 4 पॉइंट के कारण आप देखो यहाँ पे देख के भी रखा है मैंने, है ना। मेथड्स ऑफ प्रिवेंट ये तो हो गया। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, आप देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन यहाँ पे देखे रखा है। रीजंस, यहाँ पे रीजंस मैंने देखे रखा है, मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल आर अनएजुकेटेड एज वेल एज डिक्रीज डेथ रेट, डिक्लाइन मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, दिस आर द रीजन। 4-5 रीजन्स ऑफ द एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंट पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्या होता है ना, रेजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज। नाउ अगर मैरिजेबल एज को आप इंक्रीज करोगे, इट इज 18 ईयर्स फॉर द फीमेल्स एंड 21 ईयर्स फॉर द मेल। कपल्स विद स्मॉल फैमिली शुड बी गिवन सम इंसेंटिव्स, जहाँ पे स्मॉल फैमिलीज है उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। एंड बर्थ कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो अभी आगे मेन पार्ट में बर्थ कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ बाय मोटिवेटिंग स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, तो अभी आगे की पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का है ट्रिमेंडस ग्रोथ रेट और ट्रिमेंडस साइज, ग्रोथ ऑफ द साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ द वी कैन से द पॉपुलेशन, यू कैन से द इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन रेट, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। एंड दैट पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के पीछे क्या रीजन है, ये 4 रीजन है। अभी क्या है ना, उसके आप मेथड्स क्या है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करना, बर्थ कंट्रोल, दैट इज द मेन प्रोसेस टू एक्चुअली कंट्रोल द दैट पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। अच्छा, इसके बाद हम इसके जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते, बट व्हाट आर द गुड और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें भी 4-5 पॉइंट है। जैसे इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, बहुत बार क्वेश्चन आता है, हु आर द or what are the ideal contraceptive, what are the characteristics of the ideal contraceptive. So you have to write down this one: user friendly, easily available, effective, reversible with no or least side effects. It also should in no way interfere with the sexual drive as well as the desire or the sexual act of the user. So these should be the properties of an ideal contraceptive. Okay, they should be user friendly, they should be easily available, effective, reversible. Now we are coming some methods are there. जैसे कि क्या मेथड्स है, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी ग्रुप्स है, कैटेगरीज पे हमने डिवाइड करके रखा है इसको। तो एक तो है नेचुरल मेथड, एक है बैरियर, एक है IUDS, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। ठीक है, नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग द पीरियडिक एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस मीन्स जब जिस टाइम ओव्यूलेशन होगा, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल की 10 to 17 डेज, जिसमें ओव्यूलेशन की जैसे 16 डेज की 16 to 18 में क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, ऑलरेडी वी लर्न दैट वन। अगर दैट टाइम वी आर अवॉइडिंग, है ना, दैट इज वी कैन से दैट मिक्सिंग और वी कैन से द periodic abstinence, that is one such method in which the couples avoid to abstain from coitus, avoid or abstain from coitus. कब ना, जब 10 to 17 days of the menstrual cycle, because it is an ovulation time. अगर उस टाइम अगर आप coitus से avoid करोगे तो at that condition क्या हो जाएगा ना, this is called the natural method. Okay, so fertilization will be prevented. Next one is the withdrawal or coitus interrupts. is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation. Okay. Third one is a lactational amenorrhea, that is absence of menstruation. कब होता है, just after the parturition, है ना, during the period of intense lactation following parturition. Intense lactation, breastfeeding time, and after the parturition, after the childbirth.
Therefore, the breast feeds the child fully and chances of contraception are almost nil. इसमें क्या होता है, ओवुलेशन नहीं होता है, नो मेडिसिन और नो डिवाइसेस आर यूज फॉर दिस मेथड. सो यहाँ पे नेचुरल मेथड में क्या होता है ना, 3 मेथड्स है. एक तो विड्रॉल है, एक तो आपके पास है जो पीरियडिक एब्स्टिनेंस, एक तो है आपके पास कोइटस इंटरप्ट्स एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया. ये 3 पॉइंट है किसके लिए, नेचुरल के लिए. बेरियर मेथड में क्या होता है ना, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ द बैरियर्स, जैसे कॉन्डोम्स होता है, बैरियर मेथड्स है ना. और सर्विक्स, वेजाइना और सर्विक्स इन द फीमेल है ना. ये कॉन्डोम कहाँ पे यूज होगा ना, पेनिस में या तो वेजाइना और सर्विक्स में. एंड जस्ट बिफोर द कोइटस दिस कैन प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन. अच्छा, इसके बाद आप आ जाते हैं इसके, ये सबसे बड़ी बात इसकी है कि द प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कंट्रैक्टिंग एसटीडीज एंड एआईडीएस, मतलब एड्स, मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ये बिल्कुल प्रिवेंट करते हैं. टोटली ये प्रिवेंटिंग द पर्सन, दैट्स व्हाट इज वेरी मच इफेक्टिव द बैरियर मेथड. अच्छा, सेकेंड वन डायफ्राम और सर्वाइकल कैप्स और बॉल्स, ये भी बैरियर मेथड है. रबर में इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यूज होता है. ये वेजिना सर्विक्स और पेनिस में यूज होता है. और लास्ट वन इज ये तो हो गया आपकी बैरियर मेथड में आ गए. और इसमें उसके बाद इंट्रा यूट्रेन डिवाइसेस IUDS, इसमें से क्या टाइप्स होता है ना, एक तो होता है कि नॉन मेडिकेटेड है ना. इंट्रा यूट्रेन में अगेन 3 टाइप्स होता है. एक तो नॉन मेडिकेटेड जिसमें IUDS जिसमें होगा लिप्स लूप है ना. कॉपर रिलीजिंग IUDS, उसमें कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375. बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि नेम द कॉपर रिलीजिंग IUDS, तो आपको बोलना है कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375. हार्मोन रिलीजिंग IUDS में प्रोजेस्टासेट, LNG-20, ये सब एग्जाम्पल भी ज्यादातर आता है. IUDs इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, मतलब किलिंग ऑफ द स्पर्म्स विद इन द यूट्रस, एंड कॉपर आयंस रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म. देखो कॉपर आयन, जो कॉपर में जितने सारे है कॉपर में जो IUDs, दे आर एक्चुअली रिलीजिंग, दे आर सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, ये इसका फंक्शन है. हार्मोन रिलीजिंग IUDs इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन. ये जो हार्मोन रिलीजिंग में कौन कौन आएगा ना, प्रोजेस्टासेट आएगा, LNG-20 आएगा. ये क्या करेगा ना, यूट्रस की जो लेयर्स है उसको अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म्स है ना. जो सर्विक्स है ये होस्टाइल हो जाता है स्पर्म्स की तरफ, और साथ ही साथ क्या होता है जो यूट्रस है ये अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन हो जाते हैं. अच्छा, IUDs आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल who want to delay the pregnancy. ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, एक तो नेचुरल मेथड, एक बैरियर मेथड में अंदर कंडोम और डायफ्राम आ जाएगा. IUDs इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में 3 टाइप्स होता है. एक तो नॉन मेडिकेटेड जो होता है उसमें लिप्स लूप आएगा, एक कॉपर रिलीजिंग आएगा जिसको कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 आएगा. हार्मोन रिलीजिंग में आ जाएगा प्रोजेस्टासेट एंड LNG-20. इसका फंक्शन, कॉपर आयन की फंक्शन क्या है ना, दे आर सप्रेसिंग द स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म. एंड हार्मोन में क्या होता है ना, यूट्रस को अनसुटेबल कर देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, और सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देते हैं टू द स्पर्म्स. ठीक है, दीज आर द फंक्शंस. नेक्स्ट वन इज द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज जिसको हम लोग पिल बोलते हैं. स्मॉल डोज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेजन और प्रोजेस्टेजन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, progestogen and estrogen combination in another contraceptive method used by the female. They are used in the form of tablets and is the popularly called the pills. अच्छा, इसके बाद pills are taken after the gap of 7 days during which menstruation occurs, and it is started from which one 21 days के लिए है, और first 5 days of the within the first 5 days of the menstruation cycle में start करना पड़ता है, और 21 days तक कंटिन्यू करते पड़ते हैं, और उसके बाद अगेन 7 days की गैप आता है, अगेन इट इज स्टार्टेड. अच्छा, इसके बाद और एक जो है, इट दे इनहिबिट द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट द रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म. ठीक है, ये सभी इसका फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करनी है. तो द ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं और इम्प्लांटेशन को भी इनेबल कर देते हैं, और क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड द स्पर्म. जब सर्वाइक्स और वेजिना के थ्रू जो एंटर होगा उस टाइम इसकी रिटार्ड कर देंगे एंट्री ऑफ स्पर्म. रिटार्ड मतलब बंद कर देना, स्टॉप कर देना या तो कम कर देना. पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स एंड एज वेल एज एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स. सहेली जो है न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स कंटेन नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन. ये बहुत बड़ी एक आता है नॉन स्टेरॉयडल जो पिल्स लिखना पड़ता है, क्वेश्चन में आता है.
वंस ये वीक इसको लेना पड़ता है और वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। ओके, इसके बाद प्रोजेस्ट्रोजन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, इसको देखो इंजेक्टिव मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, इम्प्लांटेशन जिसको बोलते हैं। तो प्रोजेस्ट्रोजन अलोंग विद द कॉम्बिनेशन विद द एस्ट्रोजन एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। ये हो गया इम्प्लांटेशन या इंजेक्शन मेथड, है ना। एंड देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पिल्स, देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, है ना। ये आपकी इंजेक्शन के थ्रू वही सेम बात है, बट इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हो तो इसका इफेक्ट ज्यादा लॉन्गर आएगा। Administration of the progesterone or progestogen-estrogen combination or IUDs within 72 hours coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। ठीक है, तो ये हो गया आपकी डिफरेंट टाइप्स। एक तो इम्प्लांटेशन वाला है, इसको जो इमरजेंसी वाला भी होता है जिसको बोलते हैं 72 आवर्स के अंदर इसको अगर प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन को आप मतलब इंटर कराओगे बॉडी में, तो उस कंडीशन में थ्रू इंजेक्शन ऑफ कोर्स, तो इसमें क्या हो जाता है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव के हिसाब से, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के हिसाब से काम करेगा ये। तो नेचुरल हो गया, बैरियर हो गया, आईडीएस हो गया, और उसके बाद आ गया पिल्स हो गए आपके पास, और ये इम्प्लांटेशन और इंजेक्शन और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ये इतने टाइप्स हो गए। और लास्ट टाइप जो है दैट इज स्टेरिलाइजेशन। इसमें जनरली एडवाइस टू मेल और फीमेल पार्टनर। इसमें क्या होता है, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी में क्या होता है, वास डिफरेंस को इसको काट करना और साथ ही साथ इसको लाइगेट कर देना, सो दैट स्पर्म्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड दैट कैन नॉट बी कैरिड आउट एंड दैट कैन नॉट बी एक्चुअली इजैकुलेटेड और वी कैन से द कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी। एंड हेयर इट इज कमिंग फॉर ओवम, हेयर इट इज द फैलोपियन ट्यूब इज कट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी बोलते हैं। और जब फैलोपियन ट्यूब जो है वो कट होगा और लाइगेट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। तो इसमें अगर ओवम प्रोड्यूस भी हो रहे दैट कैन नॉट बी carried out through uterus and it is coming because fertilization कहाँ पे होता है, fallopian tube में होता है। It is not, if it is not carried out and sperms are not getting entry, so definitely fertilization will be occurred।